بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 7۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں قسط کی طرف۔ حد سے زیادہ وزن ڈالو گے تو کیسے سہ پائے گی؟ بیچاری ٹوٹ ہی جائے گی نا، مبارک خان اس کے انداز پر ہنس کر بولا۔ تو پھر ایسا کرو، اس کی جگہ کوئی مضبوط سی چارپائی لا کر رکھو، ورنہ یہ سچ مچ سے ٹوٹ جائے گی۔ میں بڑی اتھری نیند سوتا ہوں۔ منصور حسین نے مبارک خان کو پہلے سے اطلاع دی تھی۔ ماں صدقے چلی جائے، حالے جاب لگی ہے منصور حسین ابھی ڈرائیور دی۔ رنگلے پائیوں والا بڑا پلنگ منگوا لوں تمہارے لیے؟ مبارک خان کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ ارے یار، اس سے بڑی نیکی اور کیا ہوگی؟ نواڑی پلنگ پر سونے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، ہر کروٹ پر ڈھیلا پڑتا ہے۔ منصور حسین مزہ لیتے ہوئے بولا، ویسے یار آپس کی بات ہے، اگر تم بڑے صاحب کے سامنے رنگلے پایوں والے نواڑی پلنگ کی فرمائش کرو گے تو وہ یہ فرمائش بھی پوری کر دیں گے۔ مبارک خان نے آہستہ آواز میں کہا۔ وجہ؟ منصور حسین نے حیرت سے پوچھا۔ آخر تم علیزہ بی بی کے ڈرائیور ہو، ان کے ملازم ہو، کیا یہ وجہ کم ہے؟ مبارک خان اس گھر کا خاص ملازم تھا، وہ علیزہ اور اس کے ملازموں کی اہمیت خوب جانتا تھا۔ اس کے ملازموں کی بھی گھر میں بڑی قدر و اہمیت جانی جاتی تھی۔ اوہ اچھا اچھا، منصور حسین نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ لیکن اتنے میں ان دونوں کو کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی، دونوں چونکے، مگر مبارک خان فوراً ریلیکس ہو گئے، اسے آواز کی سمجھ آ گئی۔ یہ کس کی آواز ہے؟ منصور حسین انجان تھا، اسی لیے پوچھا تھا۔ خیرو بابا کی۔ کون خیرو بابا؟ علیزہ بی بی کے ڈرائیور۔ ڈرائیور؟ منصور حسین کو چھمبا ہوا۔ چند روز پہلے تک وہی علیزہ بی بی کے ڈرائیور تھے۔ یار صاف صاف بات کرو، تھے سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب کہ اب تم ہو، وہ نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ چند روز پہلے، مبارک خان بات بتاتے بتاتے رک گیا۔ چند روز پہلے کیا ہوا؟ وہ پوچھ رہا تھا، مبارک خان تذبذب کا شکار تھا کہ اسے بتائے یا نہ بتائے۔ کیا کوئی راز کی بات ہے؟ منصور حسین نے اس کے چہرے پہ کھوجا۔ کیا جو بھی بات ہے تمہیں بتانی تو پڑے گی، آخر تمہیں اسی لیے تو اس نوکری پر رکھا گیا۔ مبارک خان ایک کرسی کی سیٹ کے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اچھا بتاؤ پھر۔ بتاتا ہوں یار، مبارک خان نے خود کو سب بتانے کے لیے تیار کیا۔ بچپن سے علیزہ بی بی نے جب اسکول میں ایڈمیشن لیا تو خیرو بابا تب سے ان کے ڈرائیور ہیں، ان کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ علیزہ بی بی نے کہیں اور بھی آنا جانا ہوتا تو وہی لے کر جاتے تھے، لیکن چند روز پہلے وہ علیزہ بی بی کو کالج ڈراپ کرنے گئے تو راستے میں گاڑی پر فائرنگ شروع ہوگی۔ خیرو بابا بہت وفادار ملازم ہے، خود زخمی ہو گئے، لیکن علیزہ بی بی پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دی۔ پچھلے کئی دنوں سے ہسپتال میں داخل تھے، کل ہی واپس آئے ہیں، ابھی کمزور ہے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے درد سے کرا اٹھتے ہیں۔ مبارک خان نے اسے تفصیل سے سمجھایا۔ او، یہ تو واقعی پریشانی کی خبر سنائی ہے تم نے، لیکن یار سوچنے کی بات ہے، فائرنگ کروائی کس نے تھی؟ کیا تمہارے بڑے صاحب کی کسی سے کوئی دشمنی چل رہی ہے؟ منصور حسین پرسوچ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ارے نہیں یار، اس حویلی کے سبھی افراد بہت نیک، شریف اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں، نمازی پرہیزگار ہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر دشمنی ہوتی تو فوراً پتہ چل جاتا کہ فائرنگ کروانے والا کون تھا، یہ تو پتہ نہیں اچانک کون دشمن اٹھ کھڑا ہوا جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ مبارک خان اس بات سے خود پریشان ہو رہا تھا۔ یہ تو ابھی پریشانی کی بات ہے یار، لیکن کیا سوچا تمہارے صاحب نے؟ ارے سوچنا کیا، بس چھان بین میں لگے ہوئے ابھی، اب دیکھو کہ کب مسئلہ حل ہوتا ہے۔ مبارک خان پریشانی سے سر ہلا کر بولا۔ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد تمہارے صاحب پھر اپنی بیٹی کو باہر بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے، انہیں ڈر نہیں لگتا؟ منصور حسین تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ ڈر کس کو نہیں لگتا؟ ماں باپ ہیں آخر، علیزہ بی بی بڑی منتوں مرادوں کے بعد ملنے والی اولاد ہے ان کی، وہ تو اس دنیا کی ہوا بھی نہ لگنے دے، پر مجبوری ہے، پڑھنے کے لیے تو بھیجنا ہی ہے۔ ان کے امتحان سر پر پہنچ چکے ہیں، کالج نہیں جائیں گے تو پورے سال کی محنت کا نقصان ہوگا، اس لیے تو ایمرجنسی میں انہوں نے تمہیں ڈرائیور رکھ لیا، ورنہ کوئی اور حالات ہوتے تو سو طرح کی چھان بین کرتے اور پھر بھی مطمئن نہ ہوتے۔ مبارک خان صاف صاف بات کر رہا تھا۔ اور کیسی چھان بین کرنا تھی انہوں نے؟ شناختی کارڈ، لائسنس، نام، پتہ، گھر بار سب پوچھا انہوں نے؟ منصور حسین کو حیرت ہوئی۔ یار بے شک پوچھا انہوں نے، لیکن پھر بھی وہ مطمئن ہونے والے نہیں۔ کیا شاید اللہ نے تمہاری سن لی تھی، اس لیے تمہاری نوکری کا سبب بنا دیا؟ ہاں یار، میرے لیے تو سبب بن گیا، لیکن خیرو بابا کا کیا ہوگا؟ وہ بیچارے تو بے روزگار ہو گئے نا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا۔ خیرو بابا کی فکر نہ کرو، صاحب نے ان کے لیے بڑا اچھا انتظام کیا ہے۔ انتظام؟ کیسا انتظام؟ منصور حسین کو سمجھنا ہے، بڑے صاحب خیرو بابا کو ان کے گوٹ بھجوا رہے ہیں، جہاں ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں رہتے ہیں، وہ بھی اب انہی کے پاس رہیں گے اور ان کے بغیر کوئی کام کیے بغیر گھر بیٹھے بیٹھے ہر مہینے تنخواہ ملتی رہے گی۔ اس طرح ان کا بڑھاپا بھی سکون سے گزرے گا اور ماہانہ خرچ بھی ملتا رہے گا۔ مبارک خان نے مزید اطلاع دی اور منصور حسین سچ مچ مروب ہوا تھا۔ پھر تو تمہارے بڑے صاحب واقعی نیک آدمی ہیں، اپنے ملازموں کے لیے بھی اتنا اچھا سوچتے ہیں، نرم دل لگتے ہیں سینے میں۔ منصور حسین نے توصیفی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ان کے اچھا سوچنے کے لیے ہمارا اچھا بننا ضروری ہے منصور حسین، ورنہ لوگ برے کے ساتھ برا ہی پیش آتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ تم اچھے بن کے رہو گے۔ مبارک خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے تھپکی دی اور منصور حسین اس کی بات پہ دلچسپی سے مسکرائے۔ میں ہوں ہی اچھا، مجھے بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے دلچسپ انداز پر مبارک خان بھی مسکرا دیا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ خیرو بابا کی طبیعت پوچھنے، لگتا ہے وہ اکیلے ہیں اس وقت، مبارک خان نے اندازہ لگایا۔
तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी इनकी आदत कर लूँगा। मंसूर हुसैन खड़ा हो गया, फिर मुबारक खान के साथ अपने क्वार्टर से निकलकर खैरू बाबा के क्वार्टर में आ गया। अस्सलाम वालेकुम। इसकी भारी दबंग सी अजनबी आवाज़ पे खैरू बाबा ने चौंक कर आंखें खोली और मुबारक खान के साथ किसी और को देखकर इन्हें हैरानी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम खैरू बाबा, मुबारक खान करीब आकर बोला। वालेकुम अस्सलाम, इन्होंने कहतज़दा आवाज़ में सलाम का जवाब दिया। अब कैसी तबीयत है? मंसूर हुसैन ने पूछने में पहल की, जबकि वो अजनबी नज़रों से देख रहे। ये मंसूर हुसैन है खैरू बाबा, अलीज़ा बीबी का नया ड्राइवर। मुबारक खान ने इनकी मुश्किल आसान की। अच्छा अच्छा, ये है नया ड्राइवर, माशाल्लाह बड़ा गबरू जवान है। इन्होंने बड़ी मोहब्बत से इसे देखा और सराहा था। शुक्रिया। मंसूर हुसैन ने इनकी शताइश भरी निगाह नज़रों पर आंखें सर झुका लिया। अल्लाह तुझे ज़िंदगी दे पुत्र, चेहरे से बहादुर लगते हो, आइंदा भी बहादुर बन के रहना। इन्होंने मंसूर हुसैन को नसीहत की, वो इनके करीबी कुर्सी खींच के बैठ गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। इसने खैरू बाबा के हाथ थाम लिए, लहजा वाकई शर्मिंदगी लिए हुए था। क्यों पुत्र, मेरा और तेरा तो ऐसा कोई वास्ता ही नहीं कि तुझे शर्मिंदा होना पड़े। खैरू बाबा को हैरत हुई। बस ऊपर वाला किसी न किसी तो कोई ना कोई वास्ता बना ही देता है। मैं बहुत दिनों से नौकरी के लिए धक्के खाता फिरा था, लेकिन कहीं कोई खाली जगह ही नहीं मिल रही थी। साहब ने भी इनकार करके मुझे वापस भेज दिया, लेकिन अब जब आप जख्मी हुए तो साहब को आपके बुढ़ापे का ख्याल आ गया, इसलिए उन्होंने आपके बुढ़ापे की जगह मेरी जवानी को नौकरी पर रख लिया। मेरी जवानी और ताकत से आपका बुढ़ापा मात खा गया, आपको हटा दिया गया, मुझे रख लिया गया। खैरू बाबा की जगह मंसूर हुसैन को ओके कर दिया गया। इसलिए मंसूर हुसैन को शर्मिंदगी हो रही थी कि इसने आपकी जगह ले ली। मंसूर हुसैन ने इनके हाथ थामे अपनी शर्मिंदगी का जवाब पेश किया तो खैरू बाबा और मुबारक खान हैरत से देखने लगे। वो कितना एहसास हो रहा था, वरना इसे तो इस नौकरी पर खुश होना चाहिए था, मगर खैरू बाबा को सुनकर इसकी खुशी मानत पड़ गई थी। ये कैसी बात कर रहे हो पुत्र, सबके अपने अपने नसीब होते हैं। मैंने अपने नसीब का कमा लिया, अब तुझे तेरे नसीब का मिलेगा। और वैसे भी अल्लाह किसी का हक नहीं छोड़ता। साहब ने मुझे नौकरी से अलग किया, मुझे मेरे नसीब से तो अलग नहीं किया। अल्लाह ने इनके दिल में रहम डाल दिया, मेरे लिए मेरे हिस्से का रिस्क मुझे मिलता रहेगा। खैरू बाबा बहुत साबिर और शाकिर थे, इन्होंने मंसूर हुसैन की शर्मिंदगी को कम कर दिया। ये तो उन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया, मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई है। मंसूर हुसैन ने इनके जज्बे को सराहा। खुशी तो मुझे भी बहुत हुई है। अच्छा, अब अपने बच्चों के पास अपने गोठ में रहूँगा, सारी उम्र शहर में काम करते गुजार दी। खैरू बाबा ने गहरी सांस खींची और अपना गुजरा वक्त याद करने लगे। मंसूर हुसैन को इनके पास बैठना और बातें सुनना बहुत अच्छा लगा था। वो काफ़ी देर तक अपनी जवानी के किस्से सुनाते रहे, वो दोनों सुनते रहे। जोदत, वो गाड़ी से उतरकर ढीले ढाले कदमों से चलते हुए रविश से लॉन की सीढ़ियों की सिमत बढ़ रहा था, जब लॉन के बाएं हिस्से से उभरने वाली कोमल की आवाज़ पर ठिठक कर रुकी। कोमल आपा? उसे गौर से देखते हुए सीढ़ियों से उतरकर छोटी सी नदी के पुल से गुजरकर लॉन में आ गया। जी हाँ, कोमल आपा। इसे सारा बात पे हिलाकर इतराफ़ किया कि मैं ही हूँ। रात के इस पहर यहाँ क्यों? इसने हैरत से पूछा। यही सवाल अगर मैं तुमसे करूँ तो? कोमल ने जोदत को सर तपा घूरते हुए पूछा था। मैं तो लोफर आवारा हूँ, यकीनन इस वक्त आवारागर्दी करके आया होगा। इसने कंधे उचकाए। लग तो नहीं रहा कि तुम इस वक्त आवारागर्दी करके आए हो, तो फिर क्या लग रहा है आपको कि क्या करके आए? वो इस्तज़ाइया हंसा। थके थके लग रहे हो, क्या बात है? आप बताएं, आप क्या खोजना चाहती हैं? यही कि आज तुम्हारी चाल क्यों बदली हुई है? आपके ख्याल में मेरी चाल क्यों बदली हुई है? वो उल्टा इसी से पूछने लगा। कोई लड़की छोड़कर चली गई तुम्हें? कोमल ने बरमला कह दिया, बुरी तरह चौंक गया। इसका अंदाज़ा काफ़ी हद तक दुरुस्ती था। आपको कैसे पता? तुम्हारी चाल बता रही है, काफ़ी तेज़ नज़र है आपकी। वो मुस्कुराया। इसी बात का तो रोना है, कोमल ने सर झटक कर आहिस्ती से कहा। खैर ये छोड़ो, कौन छोड़कर गई है और क्यों गई है? इसने बात टाल दी। छोड़कर गई भी और नहीं भी, क्या मतलब? मतलब कि अभी से सिर्फ देखा है, हेलो हाय नहीं हुई। अगर हेलो हाय हो जाती तो इस तरह छोड़ के ना जाती। बात करते हुए मुस्कुरा रहा था। कौन है वो? यही तो पता करना है अभी। और इसी सोच ने चाल का रंग बदल दिया। ओह, तो मामला भी सिर्फ नज़रों तक है। नज़रों तक नहीं, नज़र तक है, सिर्फ मेरी नज़र तक। एक नज़र का मामला दूसरी नज़र तक पहुंचे तो तभी नज़रों का मामला कहलाता है, और फिलहाल इसकी नज़र मेरी नज़र के साथ शामिल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द शामिल हो ही जाएगी। जोर शरारत से कहकर हंसा। बड़ा यकीन है? हाँ, क्यों नहीं, जिसे खुद पर यकीन ना हो वो भी कोई आदमी है भला। और तुम्हारी बात सुन के मुझे भी एक बात पे यकीन हो गया। कोमल ने गहरी सांस खींचते हुए कहा। कैसा यकीन? यही कि जिसने तुमसे आज नज़र नहीं मिलाई वो तुमसे कल भी नज़र नहीं मिलाएगी। कोमल के अंदाज में यकीन था। जौरत सुनकर बेसाख्ता हंस दिया। मैं पुराने दौर की लड़की की बात नहीं कर रहा, आज के दौर की लड़की की बात करूँ। मैं भी आज के दौर की लड़की की बात करी, अगर वो वाकई नज़र न मिलाने वाली शरीफ घराने की लड़की है तो। कोमल अपनी बात पर जोर देकर कहा। गलत फहमी है आपको कोमल आपा, तुम खुद ही तो कहते हो कि मेरी नज़र भी तेज़ और अंदाज़ा भी दुरुस्त है। कोमल ने सजदाया था। ज़रूरी नहीं कि हर बार दुरुस्ती हो। जौरत मानने को तैयार नहीं था। ओके, तो फिर ऐसा करना, जब वो लड़की तुमसे नज़र मिलाए तो मुझे आकर ज़रूर बताना। कोमल ने से हल्का फुल्का चैलेंज दिया। ओके, मंजूर है, और अगर ना मिलाए तब बेशक ना बताना। इसने अपनी तरफ से जौरत के सामने रास्ता रखा। वो सिर्फ हूँ करके रह गया। अंदर चलोगे? कोमल ने अंदर जाने के लिए बरतोले। चले। वो इसके साथ ही चल पड़ा। थोड़ी देर पहले सरवत आंटी तुम्हारे पूछ रही थी। आपने क्या कहा? यही कि तुम अभी तक नहीं आए। इसने कंधे उचकाए। फिर उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे ख्याल में क्या कहा होगा उन्होंने? बुरा भला।
कोमल इसके जवाब पर एकदम खिलखिला के हंसी और हवेली की पुरसुकून खामोश दीवारें इसकी हंसी की जगमगाहट से चमक उठी। सन्नाटे में आवाज़ का शिगाफ पड़ता चला गया। तुम्हारा भी अंदाज़ा दुरुस्त है। इसकी बात पर जौदत भी हंस पड़ा। ओके गुड नाइट। सीढ़ियों के करीब जाकर रुक गया। कोमल ने पलट कर इसे देखा। एक हाथ सीढ़ियों की लकड़ी से बने मोटे से सतून पर था और एक कदम पहली सीट पर। कहाँ जा रहे हो? अब किचन में। क्यों भाई? खाना खाने। और क्यों? जहाँ से आ रहे हो वहाँ से खाना नहीं मिला? कोमल ने खपकी से कहा। मिला था, लेकिन मैं नज़र से नज़र मिलाने के चक्कर में खाना खाना भूल के जब होश आया तब सब मेहमान खाना खा चुके थे। जौरत ने वजह बताई। कोमल खपकी से घूरती हुई इसके पीछे किचन में चली गई। बैठो, मैं खाना निकाल देती हूँ। इसने कुर्सी की सिमत इशारा के खुद फ्रिज की तरफ बढ़ गई। आजकल क्या मसरूफियात है मौसूफ की? जौरत ने रिमोट उठाकर कॉर्नर में रखा टीवी ऑन कर लिया। मौसूफ? किसकी बात कर रहे हो? वो फ्रिज से सालन का डोंगा निकाल के पलटी तो जौदत से पूछा था। इस घर में सिर्फ एक ही मौसूफ है, बाकी सब तो लड़के लड़कियाँ हैं प्यारी आपा। वो चैनल सर्चिंग करते हुए लापरवाही से कह रहा था। मुझे इनकी मसरूफियत की क्या खबर? खबर तो तुम्हें होनी चाहिए, तुम इनके भाई हो। वो ओवन ऑन करते हुए बोली। आप मुझ पर इतना बुरा वक्त नहीं आया कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को छोड़कर आपके मौसूफ की खबर रखने लगी। ये काम आप पर ही सचता है। मुझ पर क्यों सचता है? मेरा क्या ताल्लुक इनसे? इसने बेगान के लापरवाही जाहिर की। अरे ताल्लुक क्यों नहीं, आखिर कज़न है आपके। वो सिर्फ मेरी कज़न है, और भी बहुत से कज़न्स हैं इनके। वो गरम करके करीब आ गई। ओह अच्छा, आप इनको सिर्फ अपना देखना चाहती हैं। जौरत ने मतलब निकाला। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सकता। अलबत्ता एक हल है इसको सिर्फ अपना देखने के लिए। वो प्लेट में सालन निकालते हुए मदद से बोला। कोमल इसे मुसलसल घूर रही थी। इनके साथ रिश्ता बदलें, कोई नया रिश्ता इस्तवार करें, फिर वो सिर्फ एक के। जौदत, आराम और खामोशी से खाना खाओ। रात के इस पहर में तुम्हारी ज़ुबान ऐसे चल रही है जैसे दिन अभी शुरू हुआ हो। कोमल ने इसकी बात दरमियान में काट दी। क्यों, कुछ गलत कह दिया मैंने? वो मासूमियत से बोला। खाना खाकर टीवी और किचन बंद कर देना, वरना सुबह डांट पड़ेगी। मैं अब सोने के लिए जा रही हूँ। वो कहकर बाहर की सिम चल दी। ये कही कि मैं अब जागने के लिए जा रही हूँ। इसने पीछे से आवाज़ दी। अब ऐसी भी नौबत नहीं आई कि मैं किसी के लिए अपनी नींदें कुर्बान करती फिरूँ। कोमल ने पलट कर जवाब दिया। आ जाएगी नौबत, फिक्र न कीजिए। वो बुलंद आवाज़ से बोला और कोमल मुस्कुराकर सर झटकती हुई बाहर निकल गई। वाओ ब्यूटीफुल। वो रबिश पर सिल्वर कलर की जगमगाती करोला देखकर बेसाख्ता खुश हुई। नबील हयात इसकी खुशी देखकर खुश हो गया। थैंक गॉड तुम्हें पसंद तो आई। इसने सुकून का सांस लिया। मैं इसे ड्राइव कर सकती हूँ? वो गाड़ी के करीब आकर पूछ रही थी। वाई नॉट? नबील हयात ने गाड़ी में पकड़ी चाबियों में से एक चाबी निकाल के इसकी तरफ बढ़ा दी। वाओ थैंक यू। वो खुशी से बहुत नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी। यू वेलकम। नबील बेसाख्ता मुस्कुराया। मदिया गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। कहाँ जा रही हो मदिया? फायजा बेगम अचानक बाहर और सुबह सुबह मदिया को गाड़ी स्टार्ट करते देखकर ठिठक गई। लाहौर की सड़कों पर गाड़ी उड़ाने। इसने शीशा फोल्ड करते हुए माँ को जवाब दिया। लेकिन इस वक्त इस होलिये में? इन्होंने ताज्जुब से पूछा। मदिया अभी भी सोकर उठी थी और इसने अभी तक अपना वाइट ढीला ढाला ट्राउज़र और बेबी पिंक हाफ स्लीव टॉप पहना हुआ था। पैरों में पिंक कलर की नरम सी कैंची चप्पल और स्याह घने घुंघरियाले बाल। चेहरे का हाथ तक ये शानों पर बिखरे हुए थे और इसका हुलिया देखकर जज्बा हो रही थी। क्यों, इस हुलिये को क्या हुआ? इसने लापरवाही से पूछा। लेकिन मदिया नाइट ड्रेस ही होता है, चेंज कर लो फिर चली जाना। फायजा बेगम ने इसे टोका। मॉम प्लीज़ मेरे फ्रेश मूड को ख़राब मत करें। जीन्स और टॉप की बजाय ट्राउज़र और टॉप पहनने में क्या हर्ज है? मगर मदिया प्लीज़ मॉम। इसने माँ को रोक दिया कि मज़ीद इतराज़ न करे। लेकिन जा कहाँ रही हो? दिलावर भाई के घर। इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। लेकिन वो तो घर पे नहीं है। अब की बार नबील ने जवाब दिया। क्या मतलब? कहाँ है वो? वो ठिठकी। वो कराची गया किसी केस के सिलसिले में, चंद दिन में आ जाएगा। मुझे तो नहीं बताया इन्होंने। फ़ोन किया था इसने, लेकिन तुम्हारा नंबर बिजी था और इसकी फ़्लाइट का टाइम भी हो चुका था। गए कब है? कल शाम को। आज शायद इसके केस की पहली पेशी है। ओके, मैं इनसे फ़ोन पर बात कर लूँगी। वो कहकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए बाहर निकाल ले गई और जाते जाते इन दोनों को हाथ भी हिलाया। लंदन की सड़कों पर तो इसने बारहा ड्राइविंग की थी, लेकिन आज इसे लाहौर की सड़कों पर ड्राइविंग करने का शौक हो रहा था। वो भी शायद इसलिए कि नबील अब्दुल्ला और दिलावर इसे कई बार ये बात बता चुके थे। पाकिस्तान की सड़कों पर ड्राइविंग करना जान जोखिम में डालने वाली बात होती है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं, कोई कानून नहीं। इसलिए तो पाकिस्तान में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। इसे रास्तों का सही पता नहीं था, इसलिए तो गाड़ी बेचने में दौड़ा रही थी। लेकिन यूँ ही बेरादा एक बड़ी सी स्वीट शॉप देखकर इसे भूख का एहसास हुआ, नाश्ते का ख्याल आया और इसी ख्याल के तहत इसने गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाया और इसकी गाड़ी के टायर चरचरा के रह गए। लेकिन साथ ही एकदम एक ठा की आवाज़ के साथ मदिया की गाड़ी हिल के रह गई। खुद मदिया डैशबोर्ड से टकराते टकराते बची थी। इसने पीछे गर्दन मोड़कर किसी लड़के ने इसकी गाड़ी को अपनी बाइक से मारी थी। वो देखकर गज़बनाक होती हुई खून ख्वार तेवली अपनी गाड़ी से निकल आई और गाड़ी के सामने से घूमकर दनदनाती हुई पीछे की तरफ आई। इडियट, अंधे हो गए हो? तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी? सल्लू की बाइक को संभालते अदील ने इस तेज़ आवाज़ पर चौंक कर इसे देखा। और अच्छा डैन जी, अदील ने पकड़ पई है। नज़रें ठिठक गई थी। इसके सामने गज़ब का हुस्न था या गज़ब की जवानी थी, वो फैसला नहीं कर पाया। क्या अब तुम्हें सुनाई भी नहीं दे रहा? वो तिलमिलाकर बोली।
गलती आपकी है मैम, मेरा तो कोई कसूर नहीं, अदील ने मासूमियत से कहते हुए कंधे उचकाए। मेरी गलती? तुम होश में तो? मैंने कहा था कि मेरी गाड़ी को बाइक दे मारो। मैम आपने ये बात कही नहीं, लेकिन इस पर अमल ज़रूर किया। बीच सड़क में अचानक ब्रेक लगा देना अपने एक्सीडेंट के साथ साथ कई और एक्सीडेंट करवाने के मुतरादिफ है। अभी तो शुक्र है कि मेरे पीछे और कोई गाड़ी नहीं आ रही, वरना मुझे कुचलते हुए आपको भी उड़ा के ले जाती। अदील ने इसे अचानक ब्रेक लगाने का नुकसान बताया। मुझे टालो मत, तुमने मेरी गाड़ी का नुकसान किया, नुकसान पूरा करो। इसने चुटकी बजा के इसे इशारा किया। और जब मेरा नुकसान हुआ वो कौन पूरा करेगा? दिल बाइक को देखकर बोला। आई डोंट नो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। मेरी नई नकोर 0 मीटर गाड़ी बर्बाद कर दी तुमने। आपको किसने कहा कि 0 मीटर गाड़ी लेकर सुबह सुबह रोड पे आ जाए? अदील आज खिलाफ मजाज बोल रहा था। मुझे 0 मीटर गाड़ी लेकर रोड पर आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, समझे तुम? इसने उंगली उठाकर गुस्से से कहा। जी समझ गया, आप देखने में खुदाई फौजदार लग रही हैं, आपको भला किसकी इजाज़त की ज़रूरत है? ओ यू शट अप। वो दिल को इस्तेज़ाई अंदाज पर सुलग उठी थी। आप कुछ और तो कर नहीं सकते, बकवास भी ना करो। मैंने तुम्हारी शक्ल देखकर ही पहचान गई तुम कितने पानी में हो। बस बाइक पर सवार खाली जेबें लेकर हीरो बने फिर रहे हो। मेरा नुकसान भला कहाँ से पूरा करोगे? मदिया ने इसे शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपकी गलत फहमी है मैम, मैं बाइक पर सवार हीरो बनने की हरगिज़ कोशिश नहीं करा। बस ये बाइक किसी से एक दिन के लिए उधार मांगी थी, वही देने जा रहा था कि आप बीच में आ गई। वैसे जो कुछ आप कह रही हैं इसमें आपका कोई कसूर नहीं। वो क्या कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। अमीर लोग गरीबों पर गुस्सा भी ना करें तो और क्या करें? फिर इन्हें अमीर कौन कहेगा भला? और इंसान के गुस्से का क्या? कहते हैं कि इंसान की तेवरी के 3 बल तो नींद में ही नहीं जाते। होश तो फिर होश है, गोया इंसान नींद में हो तब भी गुस्से में ही रहता है। अदील ने से जवाब दिया तो वो दंग रह गई। वो बाइक उठाकर सीधी करने लगा और फिर से स्टार्ट करते हुए सवार हो गया। आई एम सॉरी मैम, मेरी जेबें इस वक्त वाकई खाली हैं। अगर भरी होती तो आपका नुकसान खड़े खड़े पूरा कर देता। खैर फिर कभी टकराइएगा तब आपका सारा नुकसान पूरा कर दूंगा, और आइंदा कोशिश करूंगा कि मेरी जेबें भरी रहें, वरना कल को आप जैसी कोई और हसीना गरीबी का ताना देकर धुतकार देगी। वो बाइक लेकर इसके पास से गुजर कर आगे बढ़ गया। मदिया हक्का बक्का खड़ी थी। अभी इसने अपने कदम वापस मोड़े थे कि वही बाइक इसके करीब दोबारा आकर रुकी। एक बात कहना तो भूल ही गया, आप बेशक लंदन पलट हैं, लेकिन अपने लंदन पलट होने का यूँ प्रचार तो मत कीजिए। इसने मदिया के टॉप की तरफ इशारा किया। इसका टॉप बेहद टाइट था और इसके फ्रंट पे बड़े बड़े हरूफ में यूके लिखा हुआ था, जो देखने वाले को पहली नज़र में अपनी तरफ मतवज्जा कर लेता, जैसे दिल को किया था। लेकिन वो नज़र चुरा के मगर ये ज़रूरी तो नहीं हर देखने वाला नज़र चुरा लेता। असल यूके तो पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं, लेकिन इस यूके को हर कोई देखेगा। किसी की नज़र को वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए एहतजाज कीजिए। अल्लाह हाफिज़। ओहो, कैसे गला मार के गया उन्होंने। वो कह के बाइक को किक लगाता हुआ हवा हो गया और मदिया गुस्से से लाल पड़ गई। इसने बल खा के अपनी ही गाड़ी को ठोकर दे मारी। बास्टर्ड, समझता क्या अपने आप को, इडियट। मारे गुस्से के जो इसके मुंह में आया कहती गई। किसी नई जगह पे सोने की वजह से रात भर नींद का तसलसल नहीं बन सका। वक्फे वक्फे से नींद टूटती थी, इसलिए फजर के वक्त ही उठ गया। मेरी तो अपने घर भी यही हाल होता, बार बार नींद ही टूटती रहती। ਜਦੋਂ कभी आउट ऑफ द वे जाके कोई काम कर लें। किधर गया? धीरे धीरे कदमों से क्वार्टर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। इसका इरादा बाहर गेट तक जाने का था, इसलिए दाएं साइड में बने क्वार्टर तो वसील लॉन अबूर करके रविश पर आया तो कदम ठीक थम गया। गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। इस कतार में ब्लैक मर्सिडीज यूं चकमगा थी जैसे अभी शोरूम से लाकर खड़ी की हो। इसकी चमक दमक ही निराली थी। ये लीजा बीबी की नई गाड़ी है, रात ही शोरूम से आई है, तुम ही ने से ये गाड़ी ड्राइव करनी है। मुबारक खान इसके अकब से निकल कर सामने आया तो इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा था और इसीलिए इस गाड़ी का तारुफ करवा दिया। यानी 0 मीटर ड्राइव करूँगा? मंसूर हुसैन मुस्कुरा के बोला। बिल्कुल जी, ऐश है तुम्हारे। मुबारक खान ने कंधे उचकाए। पराई चीज़ पर ऐश कैसे यार? इसने गाड़ी को विंडो स्क्रीन पर हाथ फेरते हुए कहा। बेशक पराई है, लेकिन इख्तियार तो तुम्हारा ही चलेगा ना, तुम्हारे पास रहेगी तो तुम्हें नजर आएगी। चल यार, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। मंसूर हुसैन सर छटक कर हंसा और मुबारक खान के साथ गेट से निकला। अस्सलाम वालेकुम। चौकीदार आरिफ ने इन दोनों को देखकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मंसूर हुसैन बड़ी तमीज़ से पूछ रहा था। ओए होए, मंसूर हुसैन भी तमीज़ नामी जगह है। ठीक हूँ, इसने मुख्तसर सा जवाब कहा। लगता है नाराज़ हो मुझसे। इसकी बात में मुबारक खान मुस्कुराहट दबा गया। मैंने क्यों नाराज़ होना भला? आरिफ ने कंधे उचकाए। चलो जो भी, ऐसा करो पिछली खफकी वाली बातों को भूल कर आज से दोस्ती कर लेते हैं, अब तो हम लोगों ने साथ ही रहना है। मंसूर हुसैन ने आरिफ के कंधे पर हाथ रख दिया। मंसूर हुसैन भी ज़हनी टेंशन बन के चिमड़ाया ऐसी आरिफ ने। ये भी अच्छी बात है। आरिफ कर लो दोस्ती। मंसूर हुसैन दिल का बुरा नहीं है, बस गुस्से का और ज़ुबान का तेज़ है। मुबारक खान ने हाँ में हाँ मिलाई और आरिफ ने जज्बा से होते हुए मंसूर हुसैन से हाथ मिला लिया। शाबाश है। मुबारक खान ने इसे थपकी दी। मुबारक खान आज जॉगिंग के लिए निकला तो गेट पर आज फिर इन लोगों को देखकर ठिठक गया। जी साहब, ये क्या तमाशा लगा रखा है? कुछ नहीं साहब, अभी भी सोकर उठे तो ज़रा ताज़ा हवा खाने के लिए आ गए। ताज़ा हवा खाने के लिए तुम लोग को गेट के सिवा कोई और जगह नहीं मिली? इसे इन सबका गेट पर खड़े होना अच्छा नहीं लगा। साहब हम पार्क तक जाने वाले थे कि आरिफ को देखकर इसके पास रुके। मुबारक खान सफाई पेश कर रहा था। ठीक है, जहाँ जाना जाओ, लेकिन यहाँ लोफरों की तरह खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसपास के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आज़न इसे छिड़क दिया।
जी साहब अभी चले जाते हैं, मुबारक खान ने सर झुका कर कहा। जाओ, इसने सर हिला कर ज़रा ठहर कर इन्हें देखा। रुको, इधर आओ। इसने इन दोनों को हाथ के इशारे से करीब बुलाया। तुम कौन हो? आज़म ने चंद रोज़ पहले इसे गेट पर देखा लेकिन नाम भूल गया। जी मैं मंसूर हुसैन हूँ। कौन मंसूर हुसैन? अलीज़ा बीबी का नया ड्राइवर है ये मंसूर हुसैन। मुबारक खान हर बार इसकी मुश्किल आसान कर देता। अलीज़ा का ड्राइवर? आज़र को हैरत का झटका लगा। लेकिन अलीज़ा का ड्राइवर? आज़र कुछ कहते कहते रुक गया। बड़े साहब ने इसे काम पर रखा है, अलीज़ा बीबी की हिफाजत के लिए पिस्तौल भी दिया है। ये सब क्या चक्कर है? आज़र सोच में पड़ गया। हम जाएं साहब? वो मैं सर हिला के रह गया। मंसूर हुसैन और मुबारक खान चले गए, जबकि आज़र जॉगिंग पर जाने का इरादा मुलतवी करते हुए अंदर आ गया। इसका रुख आनी और डैड के कमरे की तरफ था। वो दस्तक देकर इजाज़त मिलने का इंतज़ार करने लगा। यस कम इन। वकार फंदी की आवाज़ सुनाई दी और आज़र दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? तुम इस वक्त यहाँ? इन्हें सुबह सुबह आज़र को अपने बेडरूम में देखकर हैरानी हुई। जी खैरियत है, आप आराम से तैयारी कर लें, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। वो सोफ़े की तरफ बढ़ गया। मेरी तैयारी होती रहेगी, तुम बताओ क्या मसला है। वो अपना कोट और टाई बेड पर डाल के इसके सामने आ बैठे। आपने लीज़ा के लिए ड्राइवर रख लिया? रख लिया। मुतमिन है आप? ऑफ कोर्स बेटा, मुतमिन हो तभी तो रखा है। लेकिन डैड आई एम सॉरी, मैं मुतमिन नहीं हूँ। इसने नफ़ी में गर्दन लाई। गैर मुतमिन होने की वजह बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, आप बस इसे फारिग करें, हम कोई और ड्राइवर रखेंगे। आज़र के लहजे में खफकी और नाकबारी थी। तो वजूहत बयान करो ना बेटा, बगैर किसी ठोस वजह के मैं इसे नहीं निकाल सकता। काम पे रखा है, इसे ज़ुबान दी है, कल से आया हुआ, हवेली में रात गुजार चुका है। अब सुबह उठ के बगैर किसी वजह के मैं इसे कह दूँ कि हम तुम्हें काम पे नहीं रख सकते, तुम अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और चलते फिरते नजर आओ, ये सब अच्छा लगेगा? इन्होंने आज़र को समझाने की कोशिश की। आज़र इन्हें समझाने की कोशिशों में था। देखिए डैड, मैं इतने जवान जहान मर्द को काम पे रखने के हक़ में नहीं हूँ। घर में जवान बेटियाँ और अलीज़े, क्या वो अकेली इसके साथ आया जाया करेगी? इसकी एक वजह सुनकर वकार फंदी बेसाख्ता मुस्कुरा दी। इसकी बात समझ आ गई, असल मसला मंसूर हुसैन की जवानी है। देखो बेटा, मैंने इसे इसीलिए काम पे रखा कि वो जवान जहान मर्द है। अगर खुदा ना ख्वास्ता फिर अलीज़ा पे कोई हमला होता है तो डट कर दुश्मन का मुकाबला तो कर सकता है ना। खैरू बाबा बूढ़े और कमज़ोर थे, इन्हें तो ये भी नहीं पता था कि हमलावरी इन्हें उठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं। मंसूर हुसैन जवान और बहादुर मर्द है। मैंने इसकी चंद बातों से इसे जज किया, बेखौफ और न डर है। मुश्किल वक्त पड़ गया तो झुकेगा नहीं, डट जाएगा। तुम बेफिक्र हो। रही बात इसके जवान होने की, तो एक बात याद रखो, शरीफ और ईमानदार आदमी का जवानी कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और मुझे ईमानदार लगा। वकार फंदी ने आज़र को तफसील से समझाते हुए तसल्ली दी। डैड, किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो ईमानदार है, लेकिन बेटा ईमानदार की आंखों में ज़रूर लिखा होता कि वो ईमानदार है। ईमानदार की आंख कभी नहीं झुकती। मैंने मंसूर हुसैन की नज़र झुकते हुए नहीं देखी। आप इसके इतने हामी क्यों हो रहे हैं? बेटा, इसके खिलाफ होने की वजह भी तो नहीं है। गोया आप इसे काम से नहीं निकालेंगे? यकीनन। इनके जवाब पर आज़र लब भेजे हुए खड़ा हो गया। मुबारक खान को काम पर रखते हुए भी तुम्हें ऐसे ही वहम और त्रास हुए थे। आज वही मुबारक खान जिस पे हमें तमाम मुलाजमों से ज़्यादा अतमाद है, इसके बगैर हमारे सारे काम अधूरे हैं। वकार फंदी ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसका कंधा थपका। लेकिन डैड प्लीज़ माय सन, चंद रोज़ इसका काम देखो, इस पर चेक रखो, फिर कुछ बुरा लगे तो बेशक काम से निकाल देना, बस चंद दिन मेरी ज़ुबान का पास रहने दो। इन्होंने कुछ इस अंदाज से कहा कि आज़र मजीद कुछ ना कह सका। वकार, इतना लेट क्यों हो गया आप? नाश्ता लग चुका है। लीजिए। और आसिया फंदी अपने ध्यान में बोलती हुई अंदर आई, लेकिन इनके साथ आज़र को देख कर रुकी। गुड मॉर्निंग। आज़र ने किसी ने विश किया। टू यू माई सन। क्या क्या बात है, तुम इस वक्त यहाँ? वो सुबह सुबह इसे अपने कमरे में देखकर परेशान हुई। डोंट वरी, किसी काम से आया था। ओके डैड, चलता हूँ। आज़र ने आसिया फंदी से कहकर वकार फंदी से कहा। और नाश्ता? आसिया फंदी ने पीछे से आवाज़ दी। जी मैं आ रहा हूँ, बस शावर लेकर तैयार हो जाओ। इसने पलट कर जवाब दिया और बाहर निकल गया। वकार, क्या बात है, कोई परेशानी, कोई मसला है क्या? आसिया फंदी को भी अब हर वक्त खटका लगा रहता था। अरे इसने तुम्हें बताया तो है कि कोई बात नहीं, बस कोई किसी काम से आया था। वो अपनी टाई उठाकर आईने के सामने आ खड़े हुए। आज इनकी मीटिंग थी, इसलिए काफ़ी एहतमाम से तैयार हो रहे थे। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अगर तुम ऐसा समझ रहे हो तो ऐसे ही सही। वो ज़रा मुतबस्सम से अंदाज में बोले। वकार, मैं बाकी परेशान हो रही हूँ, इन्होंने खफकी से कहा। मुझे हैरत हो रही है ये देखकर कि वकार फंदी की बीवी इतनी बेवकूफ़ और कमक्कल भी हो सकती है। वो टाई की नॉट दुरुस्त करते हुए आसिया फंदी की तरफ पलटे। क्या मतलब है आपका? वो नासमझी से देख रही थी। कमक्कल खातून, अगर अलीज़ा के हवाले से कोई परेशानी वाली बात होती तो क्या मैं तुम्हें इस तरह बेफिक्र और रिलैक्स नजर आता? इन्होंने आसिया फंदी के कंधों पर हाथ रख के जिस कदर पुरसकून अंदाज में कहा, वाकई मुतमिन होगी। शुक्र अल्लाह का, वरना मैं तो डर ही गई थी। कमक्कल जो? वो मुस्कुरा कर बोले। मोहब्बत का मक्कल बना देती है। आसिया फंदी कहकर पीछे पलट गई और मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। वो पीछे इनका कोट और ब्रीफकेस भी उठा के नीचे ले आई थी। अच्छा जी। वो वैक्यूम से कलीन और कारपेट साफ करके फारिग हुई थी कि बाहर डोर बेल बजने लगी। किचन में जाने का इरादा मुलतवी करते मुख्तसर सा कॉरिडोर अबूर करके बैरूनी मेन डोर के पास आ गई और हॉल से देखते हुए बाहर झांका था। सामने नगारिश का चेहरा नजर आया। जरी खिल उठी, इसने झट से दरवाज़ा खोल दिया। भाभी, इसने नगारिश को अंदर भी ना आने दिया और वहीं से लिपट गई। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया, इतनी बेकरार क्यों? नगारिश ने हैरानी से थपकते हुए पूछा। आई रियली मिस यू। जरी ने बच्चों की तरफ बड़ी मासूमियत से इज़हार किया। रियली? नगारिश ने इसे मशकूक नज़रों से देखा। ऑफ कोर्स, इसने इस बात में सर हिलाया।
यकीन तो नहीं आ रहा। नगारिश बेयकीनी से कहती भी अंदर आगे अब्दुल्ला इसे घर ड्रॉप करके काम पे चला गया। बेयकीनी की वजह पूछ सकती हूँ? जो बंदा हर वक्त हर लम्हा हैरान किसी एक ही याद में कैद रहता है, उसे ये तवक्का कैसे की जा सकती है कि वो किसी दूसरे के लिए इस याद के हसार से बाहर आया होगा। इसे एक याद से फुर्सत मिलेगा तो दूसरे को टाइम देगा ना। नगारी सच्ची तो कह रही थी, लेकिन झूठी तो जरी भी नहीं थी। इसने हकीकतन इसे बहुत मिस किया था। यानी मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? जरी का अंदाज कब के लिए हुआ था। खैर झूठ तो तुम नहीं बोल रही, लेकिन सच मानने पर दिल आमादा भी नहीं है। नगारिश ने कंधे उचकाए। जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। वो नाराज़ी से पलट कर किचन में चली गई। अरे मेरी जान, इसमें नाराज़ी वाली क्या बात है? जो सच है वही तो कर। तुम इसे याद करती तो अब ना भूल जाती, फिर कैसे मान ले कि तुम्हारी यादों की राह गुजर से हम गरीबों का भी गुजर हो सके। नगारिश ने आकर इसके रुखसार को छू कर इसे छेड़ा। ऐसी बात नहीं है भाभी, जो मुकाम आपका वो सिर्फ आपका। मोहब्बत अपनी जगह और रिश्ते अपनी जगह, और ज़रूरी नहीं कि जिस राह गुजर से एक गुजरे से दूसरा ना गुजरे। आखिर राह गुजर का नाम क्या है? राह गुजर यानी इससे कोई भी गुजर सकता है, सबके लिए यकसा होती है। आप गुजरो, वो गुजरे, कोई और गुजरे, बस फ़र्क इतना कि कोई भी कभी भी कोई गुजरने वाला अपने कदमों की दमक छोड़ जाता है, वो भी ऐसे ही गुजरने वाला जो अपने कदमों की दमक छोड़ गया। जरी धीमे से बोल रही थी। नगारिश इसकी बात की गहराई में खो सी कि कितना खुशकिस्मत है दिलावशा। नगारिश के मुंह से बेसख्त निकला। भाभी? यूँ बवानगी दहलीज का नाम सुनकर लरस गई। कब तक छुपाओगी? जब तक वो छुपेगा। वो सारी उम्र छुपेगा तो मैं सारी उम्र छुपाऊंगी। जरी कभी गहराई में जाकर सोचा तुमने कि अगर कभी कोई खिलाफ आरजू कुछ हो गया तो? नगारिश ने डरते हुए सवाल किया। तो दीनू मोची की जुलेखा याद है मुझे। पागल हो क्यों क्या? सियाने जब किसी सियाना समझ न छोड़ देते तो वो पागल ही हो जाता। जरी ने सर झटका। नगारिश इसकी बात पर इसे देखती रहेगी। जा दफ़ा हो जाओगे, तुम होश में तो? आप जानती भी कि जब वो मेरे हवासों पे तारी होता तो मेरे होश मेरे साथ नहीं रहते। वो कितन समेटते हुए हल्के से मुस्कुराई। इसी से अंधाधुंध मोहब्बत करते हुए ये बात भी नज़र में रखनी चाहिए कि जिसे तो मोहब्बत करते हो वो किससे मोहब्बत करता है, आपसे या आपके किसी रकीब से। नगारिश ने समझाने की दलील दी। वो मेरे सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। इतना यकीन किस बात पे है? मैंने इसकी काटदार आंखों को कई बार अपने लिए झुकते हुए देखा। हो सकता है तुम्हारे एहतराम में झुक जाती हूँ, हरगिज़ नहीं, वो मेरी मोहब्बत के बोझ से झुक जाती हैं। तो फिर अभी तक इसने कोई पेशरफत क्यों नहीं की? नगारिश में हम पड़ी हुई थी। शायद इसलिए कि इसे पता है कि जरी सिर्फ इसी की जब भी हाथ बढ़ाएगा खींची चली आएगी। आज जरी की सरशारी इसके अंग अंग से बोली थी। क्या बात है? मेरे पीछे कोई खास बात हुई है क्या? नगारिश इसे बगौर देखती हुई पास से लिए। जरी ने बेसाख्ता पलकें झुका ली। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। जरी ने इलेक्ट्रिक केटल ऑन करते हुए कहा। ओ, यानी वाकई कोई बात हुई है? नगारिश को सिग्नल मिल गया। कोई बात नहीं हुई भाभी जी, कोई तो बात हुई है नंद जी। सुरख होंठों पर गुलाबी तबस्सुम महबूब की किसी अदा की निशानी मालूम होता है। खामोश होंठों पर मुस्कुराहट बेईमानी नहीं होती। नगारिश ने थोड़ी सी पकड़ कर इसका चेहरा सामने किया। जरी ने पलके उठा सकी, नहीं अपनी मुस्कुराहट रोक सकी। बताओ भी, इसने स्टार्ट किया। इसका फ़ोन आया था। हैं? नगारिश उछल पड़ी। कब? 2 दिन पहले। फ़ोन किस लिए आता है? क्या कहा इसने? कहा तो कुछ नहीं, सवाए इसके कि मदिया मुझसे बात करना चाहती है। वो धीमे से बोली। नौखलाना तो वैसे जरी तो वैसे मानसिक संतुलन ने कम कर दा। मदिया बात करना चाहती है? क्या मतलब है इसका? मदिया और नबील इसके साथ ही थे। मदिया मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन इसके पास अपना मोबाइल नंबर नहीं था, अपना सेल नहीं था, इसलिए मदिया ने इसके नंबर से मुझे कॉल की। 3 दिन मेरा सेल बजता रहा, स्क्रीन पे इसका नाम जगमगाता रहा, मैं देखती रही और कॉल बंद हो गई। फिर इसने दोबारा कॉल की, मैंने डरते डरते रिसीव की तो दूसरी तरफ वही भारी गंभीर आवाज़ थी जो दिल के नेहा खानों में हर लम्हा गूंजती रहती है। जरी इसका जिक्र नहीं करती थी, विर्द करती थी, एक दिन में लाखों बार। बस इतनी सी बात? नगारिश मायूस हो गई। ये इतनी सी बात है तो और क्या? नगारिश घूर के बोली। नगारिश इंदी उतली खोपड़ी ना उतली मंजिल खाली हो गई। इंदे ते टेंशन नहीं लैनी ते ना इंदे फिक्र नहीं करना, तेनू सीरियस भी नहीं लेना। बहुत कुछ है मेरे लिए। मैंने इसकी और इसने मेरी आवाज़ तो सुनी है ना, सिर्फ आवाज़ सुनी है, बात तो नहीं की ना। बात का क्या, वो तो हम दिन में हज़ारों बार करते हैं। वो आयत की से मुस्कुराई। उफ़, एक तो तुम अपने साथ साथ मुझे भी पागल कर दोगी। नगारिश ने अपना माथा पीट लिया। भाभी, मोहब्बत तो आपने भी की, ऐसा पागलपन आप पे क्यों नहीं सवार हुआ? वो मासूमियत से सादगी से पूछी थी। क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ नहीं थी। मैं बेवकूफ़ हूँ? जरी आंखें फैला कर बोली। तो सियानी कहाँ से हो? यहाँ से। इसने अपने दिल से पे हाथ रखा। ओके ओके, तुम जीती मैं हारी, जल्दी से चाय लेकर आओ, मेरा सर दर्द करने लगा। नगारिश इसके सामने हाथ जोड़कर कहती हुई बाहर निकल गई और जरी इसके अंदाज पर एकदम खिलखिलाकर हंसी और 2 कपों में चाय अंडेल कर बाहर इसके पीछे ही चली गई। मेरी मोहब्बत के तस्करे पे आपका सर दर्द करने लगा? वो इसे कप थमाती हुई बोली। तुम्हारी मोहब्बत आगे नहीं बढ़ी, बस यही सोच सोच कर सर दर्द करने लगा। कोई नशोनुमानी हो रही इसकी? निगारिश की बात पर जरी की हंसी छूट गई। ये किस चीज़ से तशबीह दी मेरी मोहब्बत को? इसने हंसते हुए पूछा। बच्चे से। इसका जवाब मुख्तसर था। बच्चे से? जरी को छंबा हुआ। बच्चा पैदा होता है, मोहब्बत भी पैदा होती है। बच्चा आंखें खोलता है तो दुनिया को देखता है, मोहब्बत आंखें खोलती है तो महबूब को देखती है।
बच्चा दुनिया को देख के रोता है, वह बेला करता है। मोहब्बत महबूब को देखकर मुस्कुराती है, लजाती है। फिर बच्चा बड़ा होने लगता है, फिर मोहब्बत भी बढ़ने लगती है। बच्चा सालों में बड़ा होता है, मोहब्बत दिनों में बढ़ती है। दोनों के कद निकलने लगते हैं, पाँव पाँव चलने लगते हैं। बच्चे की ज़िद्दें बढ़ती हैं और मोहब्बत की ख्वाहिश बढ़ती है। दोनों को देखो तो एक जैसे दिखाई देते हैं, ज़िद्दी भी और मासूम भी। बच्चों की नशो रुक जाए तो माँ को फिक्र हो जाती है, डॉक्टर्स को दिखाती हैं, इनकी खुराक बढ़ाती हैं। इसलिए तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारी मोहब्बत की नशो रुकी हुई है, इसको डॉक्टर को दिखाओ और खुराक बढ़ाओ। नगारिश ने इसे तवील मिसाल दी और साथ ही मुफ्त मशवरा। कौन डॉक्टर? जरीन ने नासमझी से पूछा। डॉक्टर दिलावर शाह। व्हाट? डॉक्टर दिलावर शाह? ऑफ कोर्स यार, बेशक वो वकील है, लेकिन तुम्हारे मर्ज़ का वही डॉक्टर है। इसे अपनी मोहब्बत का मर्ज़ दिखाओ, तकलीफ बयान करो, वो खुराक बढ़ा देगा। बाहमी मशवरे से बड़ा फ़ायदा होगा तुम्हें, देख लेना। पुट्ठे सीधे मशवरे ना दें उन्होंने। बीबी भाभी क्या कहना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा इलाज शुरू किया जाए। इलाज मतलब शादी। निगारिश ने इलाज के लफ्ज़ का मफहूम बताया। मगर भाभी, बस कोई अगर मगर नहीं, मैं आज अब्दुल्ला से ज़रूर बात करूँगी, लेकिन अभी ये सब मुनासिब नहीं है भाभी। ज़री परेशान हो उठी। गैर मुनासिब भी नहीं है, मोहब्बत के किसी भी मामले में देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हें क्या पता महबूब कितने जल्दबाज होते हैं। बीबी दिलावर ने पसंद कर दी। दिलावर दा समझ नहीं आती किनू पसंद करता। नबील भी नहीं पसंद करता। देखो घुमन घेरियां विच केड़ा की होंदा। नगारिश ने समझाया। मगर वो बीबी जान और बाबा जान। जरी मुतफक्कर थी। इनको अब्दुल्ला हैंडल कर लेंगे, डोंट वरी, ट्राई तो करने दो। अब्दुल्ला भला इस मामले में क्या कहते हैं? नगारिश की बात पर वो जज्बस होती चुप होगी। वो मुतमईन नहीं थी, जबकि नगारिश ने इरादा बांध लिया। बतूल आंटी से भी बात करूंगी। आप होश में तो है, इनसे क्या बात करनी है? वो बिदक गई। यही कि अपने बेटे की शादी के मामले में हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी हैं? भाभी, इनका बेटा है, वो बेहतर जानती कि कब क्या करना है। इनका बेटा हमारी बेटी के दिल का चोर है, हमारा होने वाला दामाद है, हम क्यों ना बात करें इसके बारे में? थोड़ी देर पहले नगारिश से समझा रही थी, अब खुद इसके साथ मिलकर सुहाने ख्वाब सजाने में मदद करी थी। दामाद के लिए पर जरी लाल होगी। अगर मैं अपने मिशन में कामयाब होगी तो क्या इनाम दोगी? नगारिश शरारत मानी केली से पूछी थी। अपने 10 तोले के कंगन आपकी कलाइयों में सजा दूंगी, जरी ने सरशारी से कहा। वाह, फिर तो बैठे बैठे अमीर हो जाऊंगी, वो शरारत से हंसी। वैसे यार, आपस की बात है, आजकल 10 तोले के कंगन कितनी मालियत के होंगे? नगारिश ने रास्तराना अंदाज में पूछा और जरी इसके अंदाज पर हंस पड़ी। नगारिश पता नहीं क्या क्या मनसूबे बना रही थी। आज सुबह फिर थी ਤੁਹਾਡੀ 10 ਤੋਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵੀ देखो नगारिश बीबी की कर दी। आज सुबह इसकी आंख जरा देर से खुली, इसलिए नमाज का वक्त लेट हो गया, लेकिन फिर भी वो उजलत में उठी और सीधी वॉशरूम में चली गई। जल्दी जल्दी वजू किया, कज़ा नमाज अदा करने के बाद करने के लिए खड़ी होगी, लेकिन गहरी नींद से अचानक हड़बड़ाकर उठने फौरी तौर पर वजू करने से इसकी तबीयत पर बुरा असर पड़ा। चंद मिनटों में से छींकें शुरू हो गई। छींकों के साथ जुकाम के असरात भी जाकर होने लगे। कोई और वक्त होता तो विकी थोड़ी देर बिस्तर पर लेट कर आराम कर लेती, लेकिन वो पहले लेट उठी थी और इसे आज कॉलेज भी जाना था, इसलिए मजीद लेट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो जैसे तैसे इसे कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। यूनिफॉर्म पहना, सैंडल पहने, स्कार्फ लपेटा, अपना सारा बैग चेक किया, फिर मुतमिन होकर नीचे आ गई। लेकिन चींकों ने अभी भी इसका बुरा हाल कर रखा था। कुछ ही देर में आंखें और नाक सुरख होगी। इसकी यही हालत देखकर ड्राइंग रूम में तो मौजूद तकरीबन सभी अफराद परेशान हो गए। बेचारी मेरी भैन, मैंने भी जो छिक्का शुरू हुई है ना, ओए हो कुछ ना पूछो। क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो? वकार अपंदी अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। डोंट वरी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो शायद ठंडे पानी से वजू करने की वजह से फ्लू हो गए। वो टिश्यू से अपनी नाक और आंखें पहुँचती हुई ने तसल्ली दी थी। ठंडे पानी से क्यों? रज्जो ने गीज़र ऑन नहीं किया था? रज्जो इधर आओ। वो परेशानी से गुस्से में आ गए। इट्स ओके पापा, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। रज्जो को गीज़र ऑन करने से मैंने मना किया था, मौसम चेंज हो चुका, अब गर्म पानी अच्छा नहीं लगता। अलीज़ा ने रज्जो की बचत करा दी, वरना वाकई इसकी शामत आ जाती। मौसम चाहे जैसा भी हो, अलीज़ा को ज़रा ठंडा पानी सूट नहीं करता था और रज्जो आज गीज़र ऑन करना भूल गई थी। डॉक्टर को बुला लूँ? मेडिसिन से जल्दी ठीक हो जाओगी। परेशानी इनके चेहरे से हवेदा थी। लो बीबी नज़ला ना हो गया, पता नहीं की हो गया, कोई बड़ी बीमारी लग गई। पापा आई एम फाइन, प्लीज़ कूल डाउन। इसने इनका बाजू थाम लिया। बैठिए और नाश्ता कीजिए। इसने इन्हें कुर्सी पर बिठाया और खुद भी कुर्सी खींच के बैठ गई। आज नाश्ते में जूस मत लो, हाफ बॉयल अंडे के साथ ड्राई केक या शहद ले लो। अवकाराबंदी अपना नाश्ता भूल कर इसके नाश्ते की फिक्र में थे। नहीं, मिल्क शेक ही ठीक है। अच्छा, कहते कहते इसे छींक भी आ गई। लेकिन बेटा, नो पापा प्लीज़, मूड नहीं है। इसने ज़्यादा से फिर रज्जो को मिल्क शेक लाने का ऑर्डर दिया। जी अभी लेकर आई। रज्जो पलट गई। अगर तबीयत ठीक नहीं तो कॉलेज मत जाओ, कल चली जाना। आज़ा ने भी लबकुशाई की। कोमल ने बेसाख्ता पल के उठाकर इसे देखा, वैसे देख रहा था, इसका मन चल उठा। रोए रोए में कांटे से चुभने लगे। नहीं, आज बहुत अहम क्लासेस है, मैं अपनी फ्रेंड्स को बता चुकी हूँ कि आज मैं कॉलेज आ रही हूँ। इसने इनकार कर दिया। तो फिर अपना बहुत सा ख्याल रखना बेटा, छोटी सी तो हमें तो डर ही लगा रहता है। इसरारफंदी तकीद करते हुए मुस्कुराकर बोले। कोमल वहाँ से जल्दी भूनती हुई सबसे पहले उठ गई। इसके बाद इसरारफंदी और अहमद भी चले गए। अलीज़ा भी जूस खत्म करते हुए उठ खड़ी हुई। मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें, आज़ा ने उठते हुए कहा। मैं थोड़ी देर के लिए पिक एंड ड्रॉप करके लेकर अपनी आदत नहीं बिगाड़ सकती। मेरी गाड़ी और मेरा ड्राइवर तैयार है, मैं चली जाऊँगी, आप फिक्र ना करें, गुड बाय। वो आहिस्की से मुस्कुराकर कहती इन सबको हाथ हिलाकर बाहर निकले। मेरा बैग? इसने पलट कर रज्जो को देखा। जी मैं गाड़ी में रखा हूँ। इसका बैग गाड़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी रज्जो की थी। अलीज़ा सर हिलाकर कॉरिडोर की सिमत बढ़ गई। तवीलो रीस
कॉरिडोर अबूर करके बाहर निकली तो अपनी गाड़ी की तलाश में नजर दौड़ाई और बहुत सी गाड़ी में ब्लैक मर्सिडीज से दूर से नजर आ गई। वो रविश का इतना लंबा राउंड लेकर गाड़ी तक पहुंची और गाड़ी का डोर खोलने के लिए ड्राइवर को मतवजा किया, जो गाड़ी की छत पर बाजू टकाए इसकी सिमत पुष्ट की। न जाने की सोच में गर्क था कि आवाज़ ही ना सुन सका। वो दोबारा पुकारने पर मजबूर हुई। मां सदके जा अपनी सोचों के पिया मंसूर से ड्राइवर जी। तो गाइस यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँची। कैसी लगी किस तरह का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अब इस तरह से है कि मैं तो ये नावल स्टॉप करने वाली थी क्योंकि 200-300 कमेंट्स मुझे वारे कमेंट्स कह रही हूँ, व्यूज़ मुझे वारे नहीं खाते कि यार मैं घंटा घंटा भोंकती रही हूँ तो फिर पीछे 200-300 व्यूज़ हों तो ये तो नहीं जमता ना मुझे। तब फिर ये अरीज की फरमाइश आ गई जी, मैंने स्टार्ट कर दिया। और मेरे कुछ लिसनर्स हैं जो रेगुलर सुन रहे हैं, रेगुलर कमेंट्स भी कर रहे हैं, उनकी भी फरमाइश थी कि नहीं हम लोग भाई पढ़ रहे हैं इसको, आप इस नावल को स्टॉप ना करें। तो उनके लिए फिर मैंने ये सोचा है कि नावल की डेली आधे घंटे की 35 से 40 मिनट, आधा घंटा नहीं 35 से 40 मिनट की किस्त आया करेगी रात के टाइम। बाकी जो ये नहीं सुन रहे वो दूसरा उनके लिए दूसरा अपलोड कर दूँगी। मतलब रिस्पांस चाहिए मुझे चैनल के ऊपर। मैंने चैनल डेड नहीं करना, आपको पता है मैंने चैनल के ऊपर कितनी ज़्यादा एफर्ट की हुई है। तो इस तरह से इतना बुरा रिस्पांस तो चैनल बंद होने वाला हिसाब है। कोई मेरा चैनल बंद हो जाए, कोई वो अभी इतना ज़्यादा बुरा हाल है ना। मैं आप लोग कभी मेरा चैनल ओपन करके देखें, जहाँ पे पिछले महीने हज़ारों में व्यूज़ आ रहे थे, अब सिर्फ 100-200 500 क्रॉस नहीं हो रहा। मर मर के 2-4 दिन बाद 500 व्यूज़ क्रॉस हो रहे हैं इस नावल के ऊपर। तो उसका मैंने फिर यही डिसाइड किया है कि अब से ये नावल सिर्फ 35 से 40 मिनट की किस्त, और सुबह के टाइम फिर दूसरा नावल आ जाया करेगा। अब देखते हैं कि नावल में प्रॉब्लम है कि लोगों में मसला है। तो ऐसा है कि अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो एंड करेंगे। कमेंट सेशन इसी वीडियो के एंड पे आया करेगा। अभी मेरी पता नहीं कितने मिनट की वीडियो भी जाए होगी, उसकी जो मुझे तब है वो बकरी है। तो चलते हैं जल्दी से कमेंट सेशन की तरफ दोबारा से। अभी कमेंट्स मैंने सारे कर लिए थे, दोबारा रीड करने पड़ेंगे मुझे। पता नहीं क्या हुआ, मेरे ना हैंड फ्री आज गुम हो गई है। ईयरबड्स उधार मांग के रिकॉर्डिंग की थी तो वो बाकी रिकॉर्डिंग तो सही हो गई, जो कमेंट सेशन वाली थी वो सारी आवाज़ डबल होगी, समझ नहीं आती किसी कुछ, मैं दोबारा करनी पई। चलो खैर करने हैं। अरीशा राइटर, और फाइनली ये नावल मैंने पढ़ना था। अर्सा हो गया तुझे कहते हुए, आखिर तूने शुरू कर दिया। मुझे नावल पढ़ना था, मैंने बहुत तारीफ सुनी, अब तू पढ़ेगी तो मैं भी सुन लूँगी। आहो भाई ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ पढ़िया, तेनों कहानी सुनाई सी तो तू क्या सी पढ़ तो मैं क्या शुरू कर ली है। कुछ नहीं होता, लम्मा नावल है लेकिन आप पंगा ले लें। लेकिन अवाम नूं पसंद ही नहीं आया, पता नहीं की है। खैर तेनों हुण तो मैं शुक्रिया नहीं कह सकती। अब्दुल हादी उमैर, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। यार ये वाला जो नावल है ना, ये परमिशन इशू है इसका, इस वजह से ये नहीं रीड कर सकते। मूसा सईद सुन रही हूँ, अच्छा जी सुन लो फिर तुसी। ज़ैनब सज्जाद, यार मुझे दिल और मंसूर की कहाँ स्टोरी कुछ समझ नहीं आई अभी तक, आस्ता आस्ता आ जाएगी। मगर शॉर्ट करके बताऊँ तो ये कहानी है कि अदील भी जॉबलेस है, मंसूर भी जॉबलेस है। अदील पढ़िया लिखिया हज डिग्रियां लैके फिरदा, पर जॉब नहीं मिलती भी, तो बाऊ इम्तियाज़ की जगह ते वर्कशॉप ते करदा पिया जॉब। तो जिहड़ा मंसूर है ना उन्होंने अनपढ़, उन्हें जॉब नहीं मिली, उन्होंने कार फंदी ने ड्राइवर रख लिया, होर कोई भी नहीं आने विचाले। एमिर, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आमीन सुम्मा आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस मौके सबकी मत मारी हुई है, तबीयत ख़राब है इसलिए मैं दिन आपके नावल नहीं सुन रही, ना कोई कमेंट किया, लेकिन जो भी नावल आते हैं वो डाउनलोड कर लेती हूँ। एक तो जो मैं ईयरबड भी मेरे कान में लगा मिनट पता नहीं की होंगे, आवाज़ ऐसी कटदा किधर गया, ताकि बाद में पढ़ सकूँ। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है तो आप दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। झमोग ने वाकई सबकी मत मारी, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। बहुत अच्छा नावल है, जहाँ फ़नी सीन्स थे वहीं कुछ काफ़ी सीखने को भी मिला। सब करेक्टर्स बहुत अच्छे थे, खास तौर पर ट्विन ब्रदर्स तो बेस्ट थे। हाय हबल जबल तो वाकई बेस्ट थे। थैंक यू वेरी मच एमिर, गेट वेल सून। अली बेग, वेरी इंटरेस्टिंग नावल, बहुत मज़ा आ रहा है, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया अली बेग। बनी बैरी, नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच बनी बैरी। एक मैंने लगता है कमेंट ना मैंने पहले रीड किया था, अभी मिस हो गया। आप कह रही थी नार्मली स्टॉप करना, इंशाल्लाह नहीं करेंगे स्टॉप। आप लोगों की वजह से मैंने ना किस बस थोड़ी सी छोटी कर दी है, वो भी इतनी नहीं, 40 मिनट तक की तो हो जाएगी। तो बाकी नावल नहीं छोटा करेंगे, ठीक है, और बंद नहीं करेंगे। मैसिम, यार बहुत प्यारा नावल, 3 टाइम्स आई एम लिसनिंग। नीलम के नावल तो वाकई बड़े प्यारे, सिर्फ एक जो लास्ट वाला नीलम का नावल अपलोड किया उस पर आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं अच्छा है, बाकी सारे पे बड़ा अच्छा है। आमना तो फ़ैल, हुस्ना का कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त था और बहुत अच्छा हैंडल किया उसने इन लॉस फैमिली को। हाँ सही कहा आपने।
थैंक यू आमरा तफैल। फसीहा फातिमा ने दिल भेजे ने। रीशा राइटर वालेकुम अस्सलाम। सुपर अमेजिंग एपिसोड भी काफ़ी दिलचस्प थी, मज़ा सुनते हुए नावल से। वही ज़्यादा तेरी आवाज़ मज़े की लगती है। अरे नहीं नहीं यार, स्टॉप नहीं करना, मैं सुन रही हूँ। बस तू सुन रही है तो ऐसी बार तो स्टॉप नहीं किया। मैं अपने उत्ते वो कर लिया, अपने उत्ते डबल मेहनत पा ली थी। तो इन्ना मैं फॉर्मल नहीं हो सकती। थैंक यू ठुंकी, कोई थैंक यू ठुंकी नहीं। रीशा राइटर वालेकुम अस्सलाम। सुपर, यह स्टोरी तो बहुत मज़े की लग रही है। एक ही है, अब आगे क्या होगा, हीरोइन कौन है दोनों में से? हीरो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ वो जब अच्छा ही है बोलना। नहीं यार धमकी नहीं लगानी, अब थोड़ा आगे जा जाएगा तो लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे ना यार। 7 किस्तें हो गई हैं, हाल तक तो लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिता। कसम, जिस दिन लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया ना, 40 मिनट से किस 2 घंटे की दूंगी, पक्का वादा बोल रही हूँ। जिस दिन रिस्पॉन्स अच्छा आया ना, जिस दिन एपिसोड के ऊपर 24 घंटे में 1000 व्यूज़ आ गए, ज़्यादा अच्छा नहीं मारो गोली, 1000 व्यूज़ आ गए ना, उस तो अगले दिन ना मैं 2 घंटे की किस्त दे आँगी। सही है, कमिटमेंट कर दी है। अरीशा राइटर इंटरेस्टिंग, दिन ब दिन बहुत मज़े का होता जा रहा है। कहानी में बहुत राज छुपे, मेन लीड लीजिए है क्या? अरे नहीं यार, स्टॉप नहीं करना, अब तो मज़ा आना शुरू हुआ है नावल में। लीजिए ही यार, बाकी तेनों कहानी सुनाई हुई मैं नहीं कर दी स्टॉप। अरीशा राइटर सुपर अमेजिंग, दिलचस्पी बढ़ती जा रही है एपिसोड के। सोचते हैं बगली कब मिलेगी। अरे नहीं यार, स्टॉप नहीं करते ना, मैंने तो विश पढ़ना शुरू किया। आहो हुणे ही तो पढ़िया शुरू किया, नहीं करती स्टॉप। लेकिन छोटी एपिसोड पे कोई नहीं, हूँ तेन भी पता मैं किदा रिकॉर्डिंग करनी है। तुरबीना तो फेक अच्छा नावल है, थैंक यू तुरबीना। सी जट अच्छा नावल है, थैंक यू सी जट। बैनी बैरी बहुत अच्छा नावल है, प्लीज़ डोंट स्टॉप इट। यही वाला जो मैं लग्या से ना मिस किया, हूँ दोबारा मैं लभ के ले आई हाँ कमेंट तुहाडे। थैंक यू बनी बैरी, इंशाल्लाह नहीं स्टॉप होगा, लेकिन अब एपिसोड जितने भी आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मुझसे सही सुन रही हूँ आज दो सोनिया, दो आज सारी सुनी है। सोनी हो दो आज सारी सुनी है। अच्छा थैंक यू मूसा सईद। बुशरा आजम ज़बरदस्त एपिसोड सिस्टर, थैंक यू वेरी मच बुशरा। आमरा तफैल, अनाफ जैसी कज़न भी नसीब से मिलती है, अव्वल तो आजकल ऐसी जॉइंट फैमिली देखने को मिलती ही नहीं है। और अगर सबसे ज़्यादा मज़ा तो हदीद की वजह से है, क्या पटाखा बंदा था। बात तो सही कही आपने, थैंक यू वेरी मच आमरा। सहर अच्छा नावल है, बेहतरीन अंदाज से बयान, थैंक यू वेरी मच सहर। अली बेग वेरी इंटरेस्टिंग नावल, बहुत मज़ा आ रहा है। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन, थैंक यू वेरी मच अली बेग जी। तो गाइस यहाँ पे हमारे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे, कैसे लगा आज की किस राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।